Good morning, dear students. So let's start our next chapter, second, that is elementary concept of object and classes. So dear student, in the first class we had discussed about the Java. What is Java language? What are the different keywords or constant, literal? What are the basics tokens of Java language? So as you know that Java is an object oriented language. So before starting programming in Java, first you have to understand what is an object actually. So object, I think you already had studied it in physics, that anything that has mass and occupy space is known as ऑब्जेक्ट. कोई भी ऐसी चीज जिसका एक अपना मास होता है और जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है, वो क्या होती है? इज नोन एज एन object. Similarly, in Java programming also, when we are making our class or programming in Java, we are declaring some object that actually takes space in the memory. That's why they are known as ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो फिजिकल अपीयरेंस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी में, इसीलिए हम उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो व्हेन यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू कैन सी मेनी ऑब्जेक्ट. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी डॉग, योर डेस्क मीन्स योर स्टडी टेबल, टेलीविजन सेट, योर बाईसाइकिल, बट दीज आर ऑल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सिमिलरली वी हैव software objects also. They are also these dog, it has some feature, it occupies some space, it has mass, it is colored, belong to some breed, like the your desk means your study table, it has fixed top, means it may have a rectangular top, it may have a circular top, it has 4 legs, it is made up of wood, or its top is made up of glass. Many of the properties are there. ठीक है. Similarly, a software object which we are declaring while we are making a class, these object are also has some property. So every object, either it is a software object or it is a real world object, every object has share two characteristics. They all have state and they all have behavior. So you have to understand it very well that what is the two characteristics of an object. ठीक है. So what is the state of an object? State of an object tell what is its physical appearance actually. Suppose if you are talking about our television, suppose, ठीक है, a real life ऑब्जेक्ट. सो इट्स स्टेट मीन्स उसका साइज कितना है, मीन्स उसका स्क्रीन कितना इंचेस का है, वो कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है. अब तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं होते हैं, बट इट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कलर टेलीविजन, इट इज ये फ्लैट स्क्रीन है, एलईडी है, एलसीडी है, कैसा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, कौन से कंपनी को बिलोंग करता है, मॉडल नंबर क्या है, फीचर्स क्या है, वो उसका क्या है, स्टेट. मतलब जितने भी उसके फिजिकल अपीयरेंस है इज द स्टेट ऑफ that object television. What is its behavior means what it does. वो क्या काम करता है. behavior means उसका काम क्या है. so काम क्या है टीवी का? it is used to watch movies, serials, song. It is also can be used to play video games. Okay. Similarly, I want to give you one more example. Suppose there is a dog. ठीक है. So what is the state of the dog? The state of the dog means all the physical appearance of the dog, color of the dog, height of the dog, breed of the dog. ठीक है. Either it is a male or female. All the physical appearance that by seeing you can know is the state of a dog. What is the behavior of the dog? Mean what it does. वो क्या करता है? So it barks. It used to guard the house of the owner. So that is the behavior of a software example. ठीक है. The same example is given over here. Bicycle have state means उसका current gear, current pedal, cadence, 2 wheels, number of gears, and behavior dog का क्या होगा? barking, brake, कार का, वो साइकिल का braking, accelerator, slowing down, changing gear. Similarly, like in real world object, we have software object also. ठीक है. Software object are also modeled after a real world object in that they too have means उनका भी क्या होता है? state होता है और behavior होता है. A software object maintain its state in variable and implement its behavior in method. अब देखिए इस sentence का क्या मतलब है. ठीक है. It's a very important sentence. A software object maintain its state in वेरिएबल मीन्स आपने लिख दिया इंटीजर ए, कोई क्लास बना रहे थे, आपने डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो वो सॉफ्टवेयर जो ऑब्जेक्ट ए है उसका स्टेट क्या है वेरिएबल का,
ठीक है, कि उसका नाम A है, इट होल्ड्स ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, बिकॉज इट्स डेटा टाइप इज इंटीजर सो इट विल ऑक्यूपाई 4 बाइट्स इन मेमोरी. सो जो उसको देखते ही पता चल रहा है. बिहेवियर मीन्स व्हाट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल डू विल बी डिफाइन इनसाइड द मेथड. हम क्लास के अंदर जब फंक्शन ऐड बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे ना इंटीजर c इक्वल्स टू a प्लस b. तो a क्या कर रहा है यहाँ पर, b के साथ ऐड हो रहा है. c क्या कर रहा है, a और b के रिजल्ट को स्टोर कर रहा है. तो ये उनका क्या है, बिहेवियर, जो वो काम करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट, come to the next, that is software object. So software object are conceptually similar to real world object. Software object भी conceptually real world object की तरह ही होते हैं. They too consist of state and related behavior. उनका भी state और behavior होता है. An object store its state in fields. जो हमने भी अब डिस्कस किया, जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट, क्योंकि हमने बोला चाहे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट हो चाहे वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो, दोनों की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक स्टेट और एक बिहेवियर. ठीक है. तो जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है वो अपना स्टेट दिखाता है बाय अ वेरिएबल एंड इट एक्सपोजेस इट्स बिहेवियर थ्रू द मेथड, यानी कि फंक्शन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्लास. अगर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लिया है, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास इज what is a class and object. ठीक है. So classes and object are basic concept of object oriented programming which revolve around the real life entity. So now what is a class. आपको पता है क्लास एक क्या है, क्लास इज अ, दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं ना, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव. तो क्लास इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है. अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट आर created. It represents the set of properties or method that are common to all object of one type. Class क्या है, एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है. देखिए क्लास सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है. क्लास का मेमोरी में कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता. जब हम क्लास के नेम के साथ क्लास डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, तो वो कहीं फिजिकल अपीयरेंस कहीं पे फिजिकली मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ब्लूप्रिंट है. उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं, सपोज हमने क्लास ऐड बनाया, तो उसके अंदर जो इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी और वट एवर द ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग, that only is physically present in the memory, but the class is not present, it is only the blueprint. देखो क्या होता है, suppose we are going to a carpenter to make a study table. If I'll tell the carpenter to make a study table for me, so first it will make the blueprint. It will ask you for your requirement कि आपको कितना बड़ा टेबल चाहिए, उसका टॉप कितना बड़ा होना चाहिए, किस वुड का चाहिए, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट यू कैन पे टू द कारपेंटर. इट विल डिजाइन योर टेबल. सो फर्स्ट इट विल डिजाइन अ ब्लूप्रिंट. ठीक है, वो एक ब्लूप्रिंट बनाएगा. या फिर जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले आर्किटेक्ट क्या करते हैं, एक पेपर पे या फिर एक उसका छोटा मॉडल तैयार करते हैं. जब वो क्लास पूरी बन जाती है, वो ब्लूप्रिंट का कोई मतलब नहीं रहता है. ठीक है. जब एक टेबल फिजिकली बन जाएगा तो जो ब्लूप्रिंट था, जो उसने सपोज अपने माइंड में बनाया है या कहीं पेपर में बनाया है, वो यूजलेस है, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है. तो वैसे ही जब कोई क्लास डिफाइन होती है तो उसके अंदर जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, दैट टेक्स एक्चुअल स्पेस इन द मेमोरी, बट अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ओनली. ठीक है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड दैट आर कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड programming and represent the real life entity. A typical Java program creates many objects which as you know interact by invoking method. ये तो हम सब समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है. एक बेसिक यूनिट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और जितने भी ऑब्जेक्ट, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, सपोज हमने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किए, तो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो क्या करेंगे, आपस में ऐड होंगे, कौन किस में रिजल्ट. सपोज ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, इंटीजर ए इक्वल्स टू सी प्लस बी, जरूरी तो नहीं है इंटीजर सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखे. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर. तो आपस में कैसे कम्युनिकेट होंगे, बाय इन्वोकिंग अ मेथड. ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है और एक उसकी एंटिटी होती है. स्टेट और बिहेवियर तो आपको पता चल गया. स्टेट मीन्स उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इट रिफ्लेक्ट्स, दो दिखाएगा, दैट इज इट स्टेट. बिहेवियर मीन्स व्हाट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल डू.
ठीक है, वो क्या करेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा। आइडेंटिटी मीन्स का नाम क्या है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट डॉग होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट टेबल होंगे, पर सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है ना। ऐसे क्लास के अंदर हम बहुत सारे इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स, मगर हर का एक अपना क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, ठीक है। सो दैट इज इट्स आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट